5th of April 2025, and we are connecting around 9:15 a.m. This is Saturday, Super Saturday, where we review LinkedIn posts live as community, शुभचिंतक community. प्लस हमारा ओपन क्वेरी रिजोल्यूशन सेशन भी है. सो आप लोग किसी भी जगह पर अटक रहे हैं या कोई डाउट है तो उससे सवाल पूछ सकते हैं. हम लोग ट्राई करेंगे एज अ कम्युनिटी, जितना भी हमारा नॉलेज बेस है, एज अ कम्युनिटी हमारे पास नॉलेज बेस ज्यादा होगा, एज एन इंडिविजुअल कम. सो इट्स बेटर टू आस्क क्वेश्चंस इन एन ओपन सेशन सो दैट सारे लोग दिमाग लगाकर आपको आंसर देंगे और बेस्ट आंसर आएगा, राइट? तो उस पार्ट को हम लोग 9:30 के बाद कवर करेंगे, ओपन क्वेरी रेजोल्यूशन. अभी 15 मिनट्स, लेट्स गो अहेड विथ LinkedIn post review live. So who wants to come forward and want us to review his or her LinkedIn post? Okay, गुरप्रीत. So उसके लिए आपको कैमरे पे भी होना पड़ेगा और स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा. These are the two criteria. अगर I can't turn on my camera because I'm not well, but I can share my screen. कोई बात नहीं. वी आर ऑल शुभचिंतक. वी अंडरस्टैंड कि मॉर्निंग फेस होता है तो रेजिस्टेंस आती है. No, actually I'm not well from the last few days. ओके, कोई बात नहीं. अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, बट आपको स्क्रीन शेयर करके बताना पड़ेगा खुद से कि यस, दिस पोस्ट आई वांट फीडबैक फ्रॉम द कम्युनिटी. ठीक है, ओके, ठीक है. एंड यू हैव गॉट 5 seconds टू ओपन योर स्क्रीन एंड शो. श्योर. बिकॉज वी आर वेरी like running ahead of time और behind of time और पता नहीं कौन of time. So हम लोगों को टाइम का ख्याल रखना है. Yeah. Is it visible now? Yes. Yeah, actually I want the feedback on this post. Okay, रविंदर, you be prepared. सबसे पहले आपका फीडबैक लेंगे. So basically, hi guys. Earlier I used to join Shubhra sessions, but because I'm doing my 9 to 7 job, so that's why I have missed couple of her sessions, but she's doing great. So all the best to her. And talking about me, so I'm working as a content writer executive in an IT-based agency, and I have been working from the last 2.3 years. So I create content around SaaS, or I even write technical content for the startups. So this is my personal brand, and I'm creating content for the SaaS founders and SaaS startups. So basically, I share the content around how you can actually benefit, from my content writing tips, or how you can get more leads and conversions. So I am pitching, and I'm also sharing educational type of stuff. So my main problem is that I took a break on LinkedIn after 2 years. So that actually affected my LinkedIn profile, and the views that I'm getting on my profile is too less. So it is, I think, around 190 impressions. So it's not getting a good reach, and I'm not getting clients out of that. So this is the main reason behind sharing it. Okay, quick 2 questions. Yeah. And everybody please pay attention. I know आपकी प्रोफाइल शेयर नहीं हो रही है, बट जो भी हमारा और गुरप्रीत का इंटरेक्शन है उससे आपको भी काफी ज्यादा आइडिया मिलेगा कि कैसे सोचना है, किस डायरेक्शन में सोचना है. सो गुरप्रीत, सैस में आप क्या समझाना चाहेंगे? पहली बात, बहुत सारे लोग जो शायद बहुत ही फ्रेशर हो तो सैस क्या होता है वो समझना चाहेंगे. और दूसरी बात, आपका टारगेट ऑडियंस, जैसे आपने बोला स्टार्टअप फाउंडर्स. ओके, सो स्टार्टअप फाउंडर्स के कम से कम 3 पेन पॉइंट्स बताइए जो आप समझते हैं और उनके अराउंड कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ये 2 क्वेश्चंस का आंसर दीजिए. सैस क्या है और आप 3 पेन पॉइंट्स कौन से आइडेंटिफाई कर रहे हैं उनके लिए. SaaS is basically software as a service. So for example, if you have used the tools like Buffer or Hootsuite, so they created a software where you can schedule your social media post, or you can manage your different social media channels through that one dashboard. So SaaS is something like that.
Now, there are different types of SaaS tools. Like there is a MarTech, like marketing. The companies that have their tech software, that is called the MarTech. So like there is a different type of software. Similarly, like we are working on a project at our organization. So they do have a SaaS software for the hotels and resorts. Oh, So great. hoteliers can actually manage their, check-in, check-out operations through that software. यस फॉर उनका डैशबोर्ड वो बनाते हैं, राइट? लाइक पूरा Yeah. मैनेज करने वाला सिस्टम बनाते हैं, Yeah, राइट? from basically when the guest arrives at the hotel till the guest actually do the checkout. So it is managed everything through that software. So this is all about SaaS. ग्रेट. और आपने, अब मैं नीच डाउन पूछ रही हूँ, आपने होटल्स हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जो SaaS प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसके जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं उनका पेन पॉइंट्स कौन सा आइडेंटिफाई किया है? So basically, I actually talk to the sales team who deal with the hoteliers on regular basis. So they actually told me about their pain points and challenges. So one of the challenge is that the hoteliers actually need a software where they can manage everything, because traditionally, like there are many hoteliers who do not use any software, so they do their operations manually. So when there are a large number of guests, it is difficult for them to manage. And second thing is that they want everything to be viewed through that dashboard, like how much cash flow is coming, and basically, like there are different departments in the hotel. Front desk department is there, then housekeeping department is there. So they want everyone to be on the same page. So there are different solutions made for that. But my main concern is that I am not catering to that for my personal brand. ओके, तो आप एक जनरल Like I have not चल moved रहे हैं. down. I'm just catering to SaaS founders, but they can be from anything like MarTech or might be FinTech. Like this was my concern when I shared श्योर. the message तो here. आप लोगों के लिए एक इंसाइट है कि कोशिश कीजिए, अगर आप अपने पोस्ट को से ROI चाहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस जो है ना वो आपके पोस्ट को देख कर कुछ करे, मतलब कोई एक्शन ले. फॉर एग्जाम्पल, जैसे गुरप्रीत ने कहा कि होटल इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनकी ये प्रॉब्लम होती है, आज भी ऑपरेशंस मैनुअल चल रहा है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में, तो इनकी कंपनी प्रोवाइड करती है वैसे डैशबोर्ड. तो ये एकदम नीश हो गया, ठीक है? अगर नीश, जितना नीश डाउन करके आप कंटेंट लिखेंगे, पेन पॉइंट सॉल्व करेंगे अपने लिंक्डइन पोस्ट में, ट्रस्ट मी, यू विल गेट अट्रैक्शन फ्रॉम द रेलेवेंट पीपल. In fact, you will get opportunities, you will get visibility, and you will be a name to be recalled. ठीक है? So Gurpreet, going ahead, I think identify 3-5 niches for you, जैसे कि होटल इंडस्ट्री हुआ, और किस इंडस्ट्री में SaaS प्रोडक्ट्स का तुम लिखना चाहोगी. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज जैसे होटल्स इंडस्ट्री है, तुम मान लो जो रेस्टोरेंट्स के लिए भी डैशबोर्ड मेंटेन करने वालों को के बारे में लिखोगी, उनके SaaS के लिए भी लिखोगी, ठीक है? थोड़ा अलाइड भी सोचना, ओके? और अगर तुम बियॉन्ड भी सोचोगे तो भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा जिसके लिए तुम लिख पाओगे, राइट? है ना? तो हम लोगों को जितना नीश रहेगा ना वो उतना अच्छा है. और घबराइए मत आप लोग, कभी कभी होगा ना नीश में आपको लाइक्स कम मिलेंगे. इसका सबसे बड़ा एग्जांपल यहाँ पर आदित्य है. आदित्य ने जब ऑटोमेशन, जो उसका नीश है, उस पर लिखना चालू किया, उस पर अट्रैक्शन कम था, और वो जो जनरल अपना पीजेस टाइप का पुअर जोक्स ऑन मैनेजर्स एंड कॉर्पोरेट लाइफ एंड ऑफिस लाइफ लिख रहा था, उस पर अट्रैक्शन और इंप्रेशंस बहुत ज्यादा थे, है कि नहीं आदित्य? बट उसको जो लोग कनेक्ट कर रहे थे उस पोस्ट की वजह से, जो ऑटोमेशन में भी नीश पे लिख रहा था वो, कि चलो अगर मेक एआई में हम लोग इंस्टाग्राम ऑटोमेशन कर रहे हैं तो ऐसी चीजें हो रही है, वैसी चीजें हो रही है, but he got the relevant people eyeballs on LinkedIn and they actually offered jobs to Aditya. Aditya, is it true? Yeah. So Gurpreet, at the end of the day, what do you want from LinkedIn? Goal हमारा clear है, clear होना चाहिए. आपको job चाहिए? हाँ जी, either I want a better job or either I want more leads. ठीक है. So more leads. अभी आप बताइए, अगर आप मेरे काम की बात कीजिएगा तब तो मैं आपके पोस्ट पर ध्यान दूं, राइट? हाँ जी. मुझे लगेगा कि आप मेरी तकलीफ को समझ के सॉल्व करने लायक
शख्स हैं तो मैं जरूर आपके पास आऊंगी, क्यों नहीं आऊंगी, सबसे पहले मैसेज करूंगी, राइट? सो यू हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट यू आर राइटिंग, और जितना नीच डाउन कर सको। होटल इंडस्ट्री में भी अगर तो आप नीच डाउन करना चाहें तो लिखिए कि टियर 3 सिटीज के सारे होटल्स जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है उनके लिए हमारी स्टार्टअप डैशबोर्ड्स पिच करना चाहती है। इतना नीच डाउन करके लिखिएगा ना, मजाल है कि आपके पोस्ट को कोई रीच ना दे या सही लोगों तक ना पहुंचे। ये मेरा फीडबैक है। गोइंग अहेड, स्टिल मैं चाहूंगी कि इस पोस्ट पर मैं 2 लोगों का फीडबैक चाहूंगी। पीयूष जी, आप यहाँ पर ही हैं ना? पीयूष गुप्ता जी, आर यू हियर? आप यहाँ पर हैं तो, बट अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो प्लीज हैंड्स रेज करके या अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। और रविंदर, आपका फीडबैक चाहूंगी, ठीक है? गुरप्रीत, गो अहेड। एंड जब भी आप किसी पोस्ट को पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आपको टारगेट ऑडियंस सामने होना चाहिए कि अच्छा, मैं चाहती हूँ कि टियर 3 सिटीज के होटल इंडस्ट्री के लोग मेरा पोस्ट देखें या उन तक मेरा पोस्ट पहुंचे, उन तक मेरा मैसेज पहुंचे, और उसी हिसाब से उनका ये पॉइंट मैं सॉल्व कर रही हूँ, उसी हिसाब से लिंक्डइन पोस्ट लिखना है। हमेशा टारगेट ऑडियंस के पेन पॉइंट्स पर लिंक्डइन पोस्ट लिखना है, अगर आपको एक्चुअली में लीड्स चाहिए, लिंक्डइन से जॉब्स चाहिए। ओके, नाउ यू गो अहेड, गुरप्रीत। Shubhra, actually, I have not like written this post from hoteliers' perspective, like for the hoteliers. इस पोस्ट के बारे में समझाइए कि आपने किस पर्सपेक्टिव से लिखा। ओके, ये तो मेरा सजेशन था आपके लिए, लेकिन गोइंग अहेड आप इस पोस्ट के बारे में समझाइए। Okay, so basically in this post I have written about how actually, you know, SaaS businesses can invest in content and how they can rank their blogs, because ranking blogs is also one of the main issues. If your blog will not rank on SERP, then you won't get the leads. So it's all about, like, there are some people who write the blogs and say that, you know, we have written the content, but it's majorly about converting your SaaS blogs, or when people actually land on your website and they take an action. So this is the step-by-step process breakdown, how actually one more question. सबको मैं बता दूं कि यहाँ पर SERP का मतलब होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। ओके, गूगल में आपका रैंक करेगा, उसके हिसाब से सर्च बताता है कि आपका ब्लॉग, अगर आपने लिखा है कोई ब्लॉग की, ओके, because you don't have an organized dashboard, you are losing 70% of the business, 70% of the time, you are wasting 70% of your time in operations। मान लीजिए ऐसा करके लिख रही है ये ब्लॉग, तो ये गूगल पे रैंक करेगा, दैट इज सर्च। प्लस दूसरी बात, 3 चीजें होती हैं, अवेयरनेस स्टेज, कंसिडरेशन स्टेज एंड कन्वर्जन स्टेज। 3 स्टेजेस होते हैं, ठीक है? हम लोग जब भी कुछ लिखते हैं ना अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, तो हम लोग तीन ही स्टेजेस पर बात कर रहे होते हैं। या तो हमारे सर्विसेज के बारे में लोगों को अवेयर करवा रहे हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयर करवा रहे हैं, या उनको पता नहीं है कि ऐसे प्रोडक्ट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। मुझे नहीं पता है, फॉर एग्जांपल मैं टियर 3 के एकदम टियर कोई प्लेस में बैठी हुई हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि लोग डैशबोर्ड भी यूज करते हैं, ठीक है? मैं अवेयर ही नहीं हूँ, तो मेरे लायक ब्लॉग्स लिख रहे हैं गुरप्रीत। या कंसिडरेशन स्टेज, मतलब मुझे पता है, सोल्यूशन पता है कि प्रॉब्लम ये है कि हम अनऑर्गेनाइज्ड हैं, और सोल्यूशन ये है कि मार्केट में बहुत सारे डैशबोर्ड्स हैं, लेकिन मैं अभी कंसिडरेशन स्टेज में हूँ, मतलब कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये मुझे पता है, ठीक है? कन्वर्जन स्टेज क्या होगा? मुझे पता है कि मार्केट में एक्स सोल्यूशन और वाई सोल्यूशन है, और गुरप्रीत का है एक्स सोल्यूशन। सो मैं कैसे मोल्ड हो जाऊं कि मैं गुरप्रीत से ही खरीदूं? उसके ब्लॉग्स अलग लिखे जाएंगे, उसका तरीका, ब्लॉग का लैंग्वेज, डायरेक्शन, टोनालिटी, ब्रांड वॉइस एकदम अलग होगा, क्योंकि उसमें लोग बस ऑप्शंस चुन रहे हैं। उनके पास पता है कि मार्केट में 2 लीडर है, एक्स एंड वाई, और मुझे एक्स ही से क्यों खरीदना, इसको कन्विंस करता हुआ ब्लॉग या कोई भी कंटेंट पीस होगा। आर यू गेटिंग एवरीवन? जिनको नहीं भी कॉन्सेप्ट पता है वो समझ पा रहे हैं यहाँ पर? महेश जी, आपको समझ में आ रहा है कि हम कैसे बात कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। ओके, कूल। सो गुरप्रीत, अब आप इस कंटेंट को एक बार पढ़ के बताइए। पूरा रीड करूं इसे लाइन बाय लाइन? लाइन बाय लाइन रीड कीजिए। Okay. The step-by-step process I use to rank SaaS blogs that actually convert
I have been in SEO content writing for 2.3 years, lost money, made mistakes, learned lessons the hard way. But now I help SaaS founders get real traffic that converts. Most SaaS blogs fail because they focus on generic advice instead of what their specific audience need. Step number one, I start in SEMrush keyword overview, looking for terms directly related to our SaaS product or industry. I look at keyword difficulty score, search volume, and our current domain authority. For SaaS companies, especially with the newer domain, targeting high competition keyword is a waste of resources. So I focus on long tail keyword where the product solves specific pain points. Step number two, I don't just trust keyword tools for SaaS content. I manually research on Google to see what content is actually ranking and understand the intent behind the searches. So this helped me identify the gaps in our content strategy. I look at what competitors are ranking for and then find their unique angle they missed. Step number three, for topic research, I use the CRISE framework to make technical content engaging. This is basically the explanation of what CRISE framework is all about. So the Q stands for quotes that I took from industry experts and the customers. R stands for research on any SaaS industry trends. Then I is all about adding the custom images that breaks the text. Then E is about examples that I add. And then S is about the statistics. Step number 4 is SaaS blogs need strong openings that immediately address the user pain point. So I craft the hook that speak directly to the target customers, and then I end it with the conclusion that lead them towards your product. Step number 5 is that I write clear CTAs that actually guide them to take in action, like free trial, demo, or resource download. And then there is a CTA, like if you are struggling with low traffic from your blog, then you can DM me SaaS blog, and then I can actually hop on a consultation call. What is the image attached to this? So it was my photo. I think it's not relevant. Someone already shared. Sometimes you can use your photo. मैंने ये नहीं बोला. Okay. But the thing which I have noticed in your profile, that is purely my suggestion. And trust me, marketing में कोई सच और झूठ और कोई सही और गलत नहीं होता है, सबका व्यू पॉइंट्स होता है. ठीक है, मेरा व्यू पॉइंट्स है कि अगर आप 5 पोस्ट बना रहे हैं और 5 पोस्ट में सिर्फ अपने पिक्चर्स डाल रहे हैं विदाउट एनी कंटेंट पीस, मतलब लाइक वन लाइनर भी नहीं डाल रहे हैं या कुछ ग्राफ नहीं दिखा रहे हैं या कुछ भी, मतलब लाइक एनीथिंग व्हिच इज नॉट गोइंग विथ योर पोस्ट, देन मेरे लिए वो चीज नहीं वर्क करेगा. अगर आप 5 पोस्ट बना रहे हैं, एक फोटो में जैसे आप इस फोटो में बस एक लाइन जोड़ सकते थे कि 70% वेस्ट टाइम, जैसे नहीं होता कुछ एक लाइन, मतलब हुक लाइन टाइप, वेस्ट ऑफ टाइम ऑन हाई कंपटीशन, जो आपने लिखा ना कि लोगों को लगता है कि ये वाला हाई, मतलब एनी पॉइंट विच यू फ्रॉम योर टेक्स्ट, तो लोगों को लगता है कि अच्छा ये इस पॉइंट पे बात कर रही है, तो चलिए पढ़ते हैं. ठीक है, सो गोइंग अहेड वो भी कर सकते हैं. प्लस इन्फोग्राफिक्स का यूज कर. अगर यू वांट टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ एज एन एक्सपर्ट इन राइटिंग SaaS blogs, if you are writing 5 posts, use at least 1 infographic or 1 carousel going ahead explaining things. That will actually work. क्योंकि कभी कभी क्या हो रहा है ना, मैं एज एन एजेंसी ओनर माइंडसेट बताती हूँ कि वी नीड रियल वर्क एज वेल. सिर्फ आपके पिक्चर्स और सिर्फ कंटेंट, ट्रस्ट मी, आज कंटेंट बनाना इजी है, ठीक है, लेकिन उसी चीज को इन्फोग्राफिक में बताना, उसको समझाना, दैट इज डिफिकल्ट. आप एक काम कर सकते हैं गुरप्रीत, इस लिंक्डइन पोस्ट का लिंक कॉपी करके आप चैट पे डाल सकते हैं. लिंक्डइन पोस्ट का लिंक कॉपी करके. महेश जी, आप नैपकिन सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए ये जो क्राइज इसने बताया है ना यहाँ पर फॉर्मूला, इस पूरे कंटेंट को कॉपी कीजिएगा, नैपकिन पे डालिएगा और देखिएगा कि कौन सा इमेज जनरेट होता है. हम लोग अभी लाइव दिखाएंगे गुरप्रीत को कि अगर वो इस तरीके का इमेज लगाएंगी, जैसे आप खुद भी SaaS ब्लॉग लिखते हैं ना, SaaS ब्लॉग में आप ज्यादा से ज्यादा इमेजेस लगाते हैं ताकि एक्सप्लेन कर पाए कि व्हाई दिस SaaS प्रोडक्ट एक्चुअली वर्क्स, राइट, एंड हाउ इट वर्क्स. लोगों को क्यूरियोसिटी होगी ना, क्योंकि कोई भी डैशबोर्ड है, 1-2 रुपए की तो चीज नहीं बेच रहे हैं हम लोग मिनिमम तो हजारों में खेल रहे होंगे या लाखों में खेल रहे होंगे. डैशबोर्ड का यही हिसाब है ना, राइट गुरप्रीत?
Yeah, actually it's not getting copied. Like I'm copy pasting the ओके link. गुरप्रीत, आप अपना ही लिंक्डइन कॉपी करके दे दीजिए। और ये लास्ट पोस्ट है आपका? Yeah, this is my last recent post. ओके सो अपना गुरप्रीत लिंक्डइन कॉपी करके दे दीजिए प्लीज, थोड़ा सा जल्दी, थोड़ा सा जल्दी। ओके महेश जी, आप चैट से गुरप्रीत का लिंक्डइन का लिंक कॉपी करके ओपन कीजिए एंड इस पोस्ट के कंटेंट को कॉपी करके नैपकिन एआई, हम लोग आपको आज एक टूल से रूबरू करा रहे हैं जो हमने अपने सारे लर्नर्स में शेयर किया है, दैट इज नैपकिन एआई। ये एक ऐसा टूल है, जब भी आप किसी फॉर्मूला, कोई जैसे आपने यहाँ पर क्राइस फॉर्मूला यूज किया, इस तरीके की चीजें यूज कर रहे हैं अपने कंटेंट पीस में और आपको एग्जैक्ट ग्रैब करना है अटेंशन, ठीक है, तो यूज दिस इंफोग्राफिक टूल। ओके you can stop sharing the screen, Gurpreet. Thank you so much for coming forward and showing your post and enlightening everybody here actually, क्योंकि आपकी पोस्ट शेयरिंग से यहाँ पर सभी लोगों को कुछ ना कुछ इंसाइट्स मिला है। Am I right, everyone? Right? Yes. Mahesh ji, can you please share your screen now? जब तक महेश जी शेयर कर रहे हैं, जो डिस्कशन अभी हुई है उसमें से कोई सवाल है आपके? अगर एक सवाल है तो प्लीज हम लोग टेकअप कर लेंगे, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 9:38 एंड 2 मिनट्स में हम लोग वो नैपकिन एआई से फाइनल एक डायग्राम जनरेट करेंगे। जो अभी हमने डिस्कस किया उससे कोई सवाल है, उससे रिलेटेड कोई सवाल? एनीबडी? शांतला, दीपक, एनीबडी? या सब क्लियर है? ओके दीपक बताइए। मैम अगर इंफोग्राफिक बनाना है तो infography.in भी अच्छा टूल है वो। सब कुछ मैंने बोला, सारे सब अच्छा टूल है, हम लोग अभी नैपकिन यूज कर रहे हैं, सीधी बात है, ठीक है। टूल्स तो बहुत अच्छे, सबसे अच्छा टूल तो कैनवा है, आपको 50 जगह जाना ही नहीं है। कैनवा इज द मल्टीपर्पज टूल, बट द थिंग इज हमारे पास टाइम क्रंच रहता है। कैनवा में यही चीज अगर इंफोग्राफिक में बनाएंगे तो सेट करने में टाइम लग जाएगा, बट नैपकिन में ये तुरंत हो जाएगा। सो गुरप्रीत, नैपकिन एआई इज अ टूल, एआई टूल, जहां पर आप अपना कंटेंट डालिए एंड नाउ आप मैजिक देखने वाले हैं, ठीक है? ये दिख रहा है? हाँ जी, it is looking good. गुड और ग्रेट? Great. अभी देखिए बहुत सारे आपको वर्जन्स मिल रहे हैं, आपको जो वर्जन पसंद आए लगा दो। Is it a free tool? यस। Yes. अच्छा महेश जी, इसमें से कोई Yes, ma'am. एक आप डाउनलोड कर लीजिए और ग्रुप पे लगा दीजिए। गुरप्रीत से ही पूछते हैं, आप नंबर 1 नंबर 2 करके पूछिए, जो गुरप्रीत को पसंद आएगा वही हम लोग डाउनलोड करेंगे, ठीक है? Yeah, गुरप्रीत, first इज दिस कि आप कैसे करते हैं, मतलब कि कंटेंट स्ट्रेटजी फनल आपका कैसा है, तो ये वाला पसंद आ रहा है। नंबर 1 ये है, ठीक है। नंबर 2 ये है, ये मजा आ, मुझे तो बहुत मजा, नंबर 2 ज्यादा मजा आ रहा था। ओके हाँ ये वाला मुझे बहुत बहुत पसंद आ रहा था। नंबर 3 दिखाइए महेश जी। ये देखिए, नंबर 3 इन तीनों में से कोई चूज करो, एक डाउनलोड करके देंगे आपको। Number 3 is good. ओके नंबर 3 डाउनलोड करके महेश जी शुभचिंतक पे आप डाउनलोड करके पेस्ट कर दीजिए। सो गुरप्रीत, इट्स अ वेरी इजी टूल, just you paste the content and it will give the diagram of various versions where you can choose your favorite. Isn't it amazing? Yeah, it is. Okay. महेश जी एक और चीज जो गुरप्रीत ने डिस्कस किया है ना, क्राइज, QRIES, बाकी सारा कंटेंट हटा दीजिए, सिर्फ क्राइज वाला कंटेंट रखकर डायग्राम जनरेट कीजिए। तो गुरप्रीत गोइंग अहेड आप क्या कर सकते थे, ये 2 डायग्राम आप इंसर्ट कर सकते थे कि देखिए मेरा कंटेंट फनल ऐसा दिखता है और मैं इस फॉर्मूले का यूज करती हूँ। तो अगर ये 2 डायग्राम रहेगा तो मैं एज अ SaaS एजेंसी ओनर ज्यादा फेथ करूंगी आपसे कि आप you talk, you visualize also, because at the end of the day I want my business to talk, right? ये देखिए वर्जन 1 क्राइस फॉर्मूला, नहीं अच्छे से नहीं आया, एक मिनट महेश जी एक बार देखिए। हाँ बाकी सबको डिलीट कर दीजिए, हाँ बाकी सारा कंटेंट डिलीट कर दीजिए या न्यू नैपकिन कर दीजिए, न्यू नैपकिन। एक काम कीजिए, स्टेप 3 एक काम कीजिए महेश जी रुक जाइए। फॉर टॉपिक रिसर्च आई यूज द क्राइस फॉर्मूला, वहां से आप कॉपी कीजिए। ओके, आप लिंक्डइन पोस्ट पे जाइए, वहां पर भी आपको समझ में आ जाएगा, या जैसे भी आपको सही बैठा रहा है।
1 मिनट। हाँ यहाँ से हाँ, फॉर टॉपिक रिसर्च, हाँ बस ये क्राइस फॉर्मूला, हाँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था गुरप्रीत के पोस्ट में कि हम कौन से फॉर्मूले को यूज करते हैं। ठीक है, यस, अब इससे जनरेट करवाइए। देख रहे हो आप गुरप्रीत मैडम, मैजिक, बस लिखो। और यही चीज कैनवा में बनाने में कितना टाइम लगेगा बताइए गुरप्रीत मैडम? हाँ, टाइम बहुत लग जाएगा। ऑल्सो मैं तो प्रोफिशिएंट भी नहीं हूँ अभी कैनवा में उतना। ठीक है, enhancing technical content engagement, expert quotes, industry trends, visual aids, case example, supporting statistics। अब बताइए कितना अच्छा लग रहा है गुरप्रीत, है ना? एक्सपोर्ट लग रहा है ना अच्छा? हाँ, प्रोफेशनल लग रहा है। बस अब ये दोनों लगा दीजिएगा तो नहीं लगता है कि पोस्ट का क्वालिटी बढ़ जाएगा? हाँ जी, चलिए, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच महेश जी फॉर कोऑपरेटिंग। शुभचिंतक पे आपको ये दोनों पिक्चर्स मिल जाएंगे गुरप्रीत। और शुभ्रा, आपका वैसे कोई पर्सनल ओपिनियन मेरे पोस्ट को लेकर कि लाइक इट वाज टू लॉन्ग या कुछ ऐसा, होप वाज नॉट इंटरेस्टिंग? बहुत सही है, लेकिन मैंने आपको कहा ना कि इफ यू वांट जॉब्स और लीड्स, यू नीड टू टॉक इंडस्ट्री, नीच डाउन स्पेसिफिक। ठीक है, जैसे मुझे अट्रैक्ट करना है ज्वेलरी इंडस्ट्री के लोगों को, ज्वेलरी इंडस्ट्री भी वैसे ब्रांड्स जो कि टियर 3 सिटीज में उनका समझ लो कि लेट्स सपोज कि 30 करोड़ के अंदर का बिजनेस है, सो आई विल टॉक देयर पेन पॉइंट्स। यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई इंडस्ट्री नीशेस बेटर। अपने आप से पूछो कि अभी मैं 2.5 साल से काम कर रही हूँ, मुझे क्या अच्छा लग रहा है बनाने के लिए कंटेंट। ठीक है, मुझे मजा आ रहा है होटल्स के बनाने के लिए, तो होटल्स में और क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। और अगर कोई इंडस्ट्री नहीं भी पता है, आपने मेरा न्यूज़लेटर गो थ्रू किया था जो मैंने आपको लिंक भेजा था? नहीं, वो मैं आज करूंगी, आज मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा आई अटेंड योर क्लास। ओके, सो द थिंग इज आप वो न्यूज़लेटर को जरूर गो थ्रू कीजिएगा। उसमें हम लोगों ने एग्जैक्ट ब्रेकडाउन किया है कि अगर आपको किसी इंडस्ट्री के बारे में नहीं भी पता है, बिकॉज इट्स अ यंग एज फॉर यू वांट टू एक्सप्लोर आल्सो, राइट? तो नहीं भी पता है तो कैसे रिसर्च करके आप उस इंडस्ट्री के भी बारे में कंटेंट कैसे बना सकते हैं, दैट वाज कवर्ड इन आवर न्यूज़लेटर। एंड थैंक्स टू रविंदर, ही हैड अ डिटेल्ड प्रेजेंटेशन अराउंड 3 key industries and how to research about that those, और उसी के रिसर्च के तरीके को आप किसी भी इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं। रविंदर, यू रिमेम्बर? Yeah, I do. शुभ्रा, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे अगर मैंने कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री नीच डाउन करके सोच लिया एंड देन उसके पेन पॉइंट्स आई कैन टेक हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी ना, चैट जीपीटी या रियल पर्सन से भी बात कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। रियल पर्सन मिल जाएंगे लिंक्डइन पे और आपके आसपास भी मिल जाएंगे। मैं तो आज भी विश्वास करती हूँ कि जब तक आप उन लोगों से बात नहीं कीजिएगा, आपको अंदर की बातें, ये रूपा वाला अंदर की बातें नहीं है, रूपा बनियान, ठीक है, मगर अंदर की बातें आपको लोगों से ही बात करके पता चलेगी। ठीक है कि नहीं महेश जी? आप इतने साल से इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, क्या किताब सब कुछ बता सकता है? क्या चैट जीपीटी सब कुछ बता सकता है लोगों के समस्याओं के बारे में? बिल्कुल नहीं, सबके अलग अलग पॉइंट होते हैं। एक कॉमन पॉइंट होता है, एक पर्सनल होता है, सबके अपने अलग अलग पॉइंट होंगे। अलग अलग लोगों से आप सेम इंडस्ट्री के अलग अलग लोगों से बात करेंगे तो अपना सबका अलग अलग पॉइंट आपको मिलेगा। हमें सबको अगर करना है तो सबसे बात करनी पड़ेगी, एटलीस्ट 10 लोगों का डेटा होना चाहिए कि हाँ मैं 10 लोगों से बात की ट्रैवल इंडस्ट्री में, जो कि अभी मेक माई ट्रिप में एक काम कर रही है, एक क्लियर ट्रिप में काम कर रही है, एक ईज माई ट्रिप में काम कर रही है, एक अगोड़ा में काम कर रहा है, ऐसे करके। समझ में आया? Like that. Okay, it's time to wrap up because we already are starting with our agency work. I hope this session helps, Gurpreet. Right? कितने दिनों बाद आ रही हो इस सेशन में? कुछ फीडबैक दो, मजा आया हमेशा की तरह? हाँ, it was really good. Thank you so much.